Hello viewers, welcome back to my channel Ungsman Sinha Mathematics. So in this video we are going to discuss about some solution related to the chapter integration from CBSE mathematics. I will discuss it now. Without delaying the time, I am going to start it. But before starting the integration chapter, we are going to learn about, I am following the R.S. Agarwal math book of CBSE class 12th math. Obviously this is R.S. Agarwal. Now before starting the integration, today we will start application of integration, one chapter. But before that, first we have to know about differentiation. Now what is differentiation? To know about this differentiation, we have to know about two variables. Let them take as x and y. Now let us take a length. This is one length. Okay, let us take this length as y. Now there will be a small change, and that change should be this. Now this small change is very small with respect to this change. This means with respect to this length y. So this change is, I can tell you that this change is delta y. Okay. Now, so with respect to y, the change of y be delta y. With respect to y, the change of y be delta y. Next, अगर हम लोग ये डेल्टा y है, तो अगर हम लोग ये जो डेल्टा y जो चेंज है, डेल्टा y, ठीक है, इसको विथ रेस्पेक्ट टू अगर x करेंगे, क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये मेरा और एक लेंथ है x, इसका स्मॉल चेंज डेल्टा x है, तो ये जो चेंज है y का, जो चेंज है विथ रेस्पेक्ट टू ये डेल्टा y विथ रेस्पेक्ट टू y, ये जो चेंज है विथ रेस्पेक्ट टू y हो गया. अब ये जो चेंज है डेल्टा x, ठीक है, ये चेंज डेल्टा y चेंज विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा x, दैट शुड बी रिटन एज अ फॉर्म ऑफ डेल्टा y by delta x. Understood? Now taking the limit delta y by delta x, okay, that should be written as dy dx. That is change of length y with respect to length x, okay, and that should be denoted as dy dx. This is not dy by dx, this we can pronounce it as dy dx, okay, or this can be written as d dx, first d dx of y, then it should become dy dx. Hope you will able to understood it. So this is the basic concept of differentiation.
that is differentiation of one variable with respect to the other variable. Next we will do some maths related to differentiation, but this is the ordinary first idea of differentiation. Of this idea should be in class 11th chapter. Now today we will going to learn about the reverse process और आप कह सकते हैं कि उल्टा रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन. ठीक है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंशिएशन करके एक वेरिएबल को डिफरेंशिएशन करके मुझे जो मिला, ठीक है, उसको मुझे फिर से वापस लाना है. सपोज मैं डिफरेंशिएशन का सेवरल फार्मूला है, मैं आपको डिफरेंशिएशन का वेरियस टाइप का फार्मूला है, मैं आपको क्लास 11th मैथमेटिक्स से क्लास 11th जो RS अग्रवाल मैथ बुक है, RS अग्रवाल क्लास 11 का, सॉरी नॉट 12, क्लास 11th मैथ बुक, RS अग्रवाल क्लास 11th मैथ बुक, द फॉर्मूलास आर गिवन, आई एम शोइंग यू. और ये यहाँ पर दिया हुआ है जो मैं बोल रहा था कि जो एक y प्लस डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई इज एन इंक्रीमेंट ऑफ y कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीमेंट ऑफ डेल्टा x इन x. तो ये सब कुछ मतलब मैं जस्ट बेसिक आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है. और ये जो डेल्टा वाई डेल्टा x है, इसको अगर हम लिमिट लेंगे, लिमिट यहाँ पर मुझे ये जो लिमिट है, लिमिट यहाँ पर जो डेल्टा x है, डेल्टा x और टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा. और ये जो डेल्टा y है, डेल्टा x है, ये मैं कैपिटल डेल्टा लिया हूँ, बुक में स्मॉल डेल्टा लिया है, उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है. कुछ बुक में वो कैपिटल डेल्टा भी लिया हुआ है. तो बेसिकली दिस इक्वल्स टू मीन्स दिस dy dx, दिस इक्वल्स टू, वो क्या हो जाएगा, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, so that's equals to limit डेल्टा x टेंड्स टू 0 f of x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा x. तो ये हो गया, ठीक है ना. यहाँ पर बुक में फॉर्मूलाज दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख पाएंगे. फॉर्मूलाज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ RS अग्रवाल बुक से. और ये जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, दिस इज द जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, दिस आर द फॉर्मूलाज. होप यहाँ पर दिया हुआ होगा द फॉर्मूलाज ऑफ दिस आर द फॉर्मूलाज. होप यू आर एबल टू अंडरस्टूड सी इट. दिस इज द फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑल द डिफरेंशिएशन फार्मूला. तो ये आपको याद रहना पड़ेगा. तो देखिए मैं एक फार्मूला ले रहा हूँ, मैं ये वाला फार्मूला ले रहा हूँ, ठीक है. e टू द पावर x जो फंक्शन है उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन. तो मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ y इज इक्वल टू e टू द पावर x. दिस इज द फंक्शन मीन्स y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई भी ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है. तो अब मुझे डी डी एक्स ऑफ y निकालना है. तो इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x, ठीक है. तो उसका फार्मूला, डिफरेंशिएशन का फार्मूला के रिस्पेक्टिव में ये क्या आ रहा है, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x मीन्स ई टू द पावर x. तो इसका ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आया, ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आया ई टू द पावर x, ठीक है ना. अब तो ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस है और डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन प्रोसेस, ठीक है. अब इसका रिवर्स प्रोसेस मतलब जिस प्रोसेस से हम लोग फिर से e टू द पावर x आएंगे, मैं और एक फंक्शन लेता हूँ जैसे साइन x का, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं साइन x का. तो डी डी एक्स कर रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन x, ये क्या आया, कॉस x आ गया, ठीक है. तो साइन x का डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आया, कॉस x आ गया. तो जिस प्रोसेस से मैं
cos x को कुछ प्रोसेस करूंगा जिससे मुझे sin x मिलेगा, वही प्रोसेस है इंटीग्रेशन। ठीक है, दैट इज द प्रोसेस इंटीग्रेशन। मतलब sin x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो अगर मुझे cos x आया तो cos x को कुछ क्या प्रोसेस करेंगे जिसमें मुझे sin x मिलेगा, तो वही प्रोसेस है इंटीग्रेशन प्रोसेस। यही मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है ना। अब हम लोग चल जाते हैं इंटीग्रेशन प्रोसेस में।